Explain this sum x once again. Okay, let me explain you again this sum x. So sum x is nothing but this is iterator functions. आपको इंटरव्यू में हमेशा पूछते हैं कि what is the difference between sum and sum x. ठीक है, sum क्या है? एक aggregation functions है. If in a table you have a numeric column and you wanted to do aggregation on that particular column. So sum is the aggregation function, right? Sum, max, mean, count, average, those are the aggregation functions. So if interviewer asks about what is the difference between sum and sum x, then you can explain this with the example. Example कौन सा दो? Let's consider this transaction table. Example interviewer को बोलो कि let's say we have a sales table, we have a transaction table. In transaction tables we have order quantity column. Now if I wanted to do, I want to calculate total order quantity, then I can do aggregations of that particular order quantity column. For that purpose I can use sum functions. I use sum functions, wrap this inside this sum functions order quantity column. I'll take reference from order quantity column because sum functions accept one parameter which is nothing but a column name, right? Now, what is the sum x in terms of? Sum x is the iterator function. Sum x can accept two parameters. First is the table, second one is the expressions. Table over is my sales fact table. Now, let's say for example, you want to discuss what example for the sum x or iterator function. Then you can say that let's say we have a dimension table which is product and we have one transaction table which is sales fact table. So sales track table contain order quantity and transaction table contains product price. So first of all, using related functions, we can call this particular column from dimension table to the transaction table. Now I want to calculate total revenue. So in order to calculate total revenue, I need to multiply total order quantity with product price. So this calculations needs to perform row wise. So to do that, I use iterator function sum x. So sum x functions accept two parameter. First is the table, which is nothing but my transaction table. So I pass my transaction table, which is nothing but sales fact, comma. Next part is the expression. Expression can be whatever the expression, any mathematical relations or any mathematical calculations you want to perform. Over here, we performing just multiplying one column with another column. So first is the order quantity multiplied by product price. If your product price is in your transaction table, then no need to use related. If not, then related needs to be used before order price, yeah, product price column, related product price. And if you wrap this in sum x and hit enter, then what will happen exactly? For this particular transaction table, each row can perform the expression you pass. आपने expression में क्या pass किया हुआ है? Order quantity multiplied by product price. These calculations perform internally row wise and result will be stored in Power BI memory. Once all the rows from the transaction tables will finish, after that this whatever the result store in Power BI memory, it will give you a sum because you wrap this whole thing in a sum x. सो जो मेमोरी में बचा हुआ सब जो रिजल्ट है इनका सम होगा एंड यू गेट अ फाइनल आंसर. सो दिस इज नथिंग बट अ सम एंड सम एक्स. आपको ऐसे प्रॉपरली उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा विथ एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के थ्रू जाओगे तो ईजी रहेगा आपको एक्सप्लेन करना. क्लियर है एवरीबडी? किसी को कुछ डाउट है इसमें? सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके फाइन. Now the next part is, let's say now we understand that कि using this measure हम एक स्केलर वैल्यू ला सकते हैं. लेट्स से फॉर दिस पर्टिकुलर टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मेरे पास रिजल्ट है 175 के, इतनी मेरी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है. नाउ व्हाट इफ मुझे देखना हो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए कितनी ऑर्डर क्वांटिटी
इस पर्टिकुलर चार्ट में तो मुझे दिख रहा है कि 37925 ये इस ऑस्ट्रेलिया कंट्री की टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है, बट मुझे एक स्केलर वैल्यू चाहिए जो मुझे ऑलवेज ऑस्ट्रेलिया कंट्री का ही ऑर्डर क्वांटिटी दे। मुझे एक ऐसा कैलकुलेशन चाहिए जिसका रिजल्ट ऑलवेज चाहिए ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर क्वांटिटी। वट एवर मैं स्लाइसर्स में या यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करूँ, बट इस पर्टिकुलर आउटपुट में मुझे चाहिए टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? लेट्स से आई परफॉर्म वन मोर कैलकुलेशन ओवर हियर इन द कैलकुलेशन। लेट्स से मैं न्यू मेजर कर रहा हूँ। इस टाइम पे हम सॉरी, अभी मुझे क्या करना है, इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेरा एग्जिस्टिंग मेजर है, इस मेजर के ऊपर कुछ फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है, राइट? In order to apply filter on measures or calculations, we always use calculate function। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से दिस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर है सम, यहाँ पे भी कैलकुलेट है। लेट्स से आई विल रैप दिस इन अ कैलकुलेट। इसको मैंने कैलकुलेट के अंदर रखा है, आई विल जस्ट हिट एंटर। यू कैन सी वो मुझे सेम रिजल्ट दे रहा है 175 के। सो कैलकुलेट जो है वो कैलकुलेट फंक्शंस, जब मैं कोई एग्रीगेशंस करता हूँ सिंपल, मुझे कैलकुलेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो इनविजिबल फॉर्म में रहता है यहाँ पे। बट इफ आई वांटेड टू अप्लाई सम फिल्टर ऑन दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन, देन आई नीड टू यूज कैलकुलेट। ओके, कैसे? लेट्स से आई विल क्रिएट अ न्यू मेजर। जैसे मैं कनाडा के लिए उसकी ऑर्डर क्वांटिटी निकाल रहा हूँ। सो मैं इस मेजर को नाम दे रहा हूँ कनाडा ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू, जब मुझे पता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर फिल्टर अप्लाई करके कैलकुलेशंस करना है, देन आई यूज कैलकुलेट फंक्शंस। कैलकुलेट मेरे टू आर्ग्यूमेंट्स या टू पैरामीटर मुझे पास करने होते हैं। फर्स्ट इज माय एक्सप्रेशन, सेकंड वन इज माय फिल्टर्स। यहाँ पे दिख रहा है कॉमा करके डॉट डॉट है। सो एज मेनी एज, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। जितने फिल्टर्स आपको चाहिए वो सारे आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करेंगे? लेट्स से एक्सप्रेशन में मेरा एक कैलकुलेशन आएगा। कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी बना के रखा है टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। सो आई कैन टेक रेफरेंस फॉर दिस मेजर टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। सिंपली आई टाइप टोटल ऑर्डर क्वांटिटी ओवर हियर। दिस इज माय एक्सप्रेशन टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, जो मुझे पूरी 175 की ऑर्डर क्वांटिटी दे रहा है। लेकिन मुझे उस पर फिल्टर अप्लाई करना है। कौन सा फिल्टर अप्लाई करना है? मुझे कंट्री का फिल्टर अप्लाई करना है। सो आई सर्च फॉर कंट्री नेम। सो मेरे पास टेरिटरीज का कंट्री है। सो टेरिटरीज का कंट्री कॉलम इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कनाडा। ये कनाडा दिख रहा है आपको, CANADA। मैं वो यहाँ पे पास कर रहा हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। आई विल जस्ट रैप दिस इन कंप्लीटेड। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेशंस करने की कोशिश कर रहा हूँ? टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करो, बट फॉर ओनली कंट्री कनाडा। ये मैंने फिल्टर पास किया हुआ है। सो लेट्स से आई विल हिट एंटर। Let me drag this beside this. So just Control V. ठीक है, let me सी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मेरी ऑल कंट्रीज की मिला के, विच इज नथिंग बट 174808। यहाँ पे दिख रहा है टोटल ऑर्डर क्वांटिटी सभी कंट्रीज की मिला के। एंड दिस 22614 क्या है? मेरी कनाडा की है। ये दिख रही है 22614 टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। इफ आई लेट्स से आई सेलेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ओवर हियर, ये पर्टिकुलर ये सारे मेजर्स चेंज हुए, लेकिन ये मेजर चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि ये पर्टिकुलर फिल्टर लगा के आपने उसको बोला हुआ है कि मुझे सिर्फ कनाडा का ही
क्वांटिटी देखनी है यहाँ पे, राइट। लेट्स से आई सेलेक्ट ईयर, से दिस पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, इस पर्टिकुलर ईयर के लिए कनाडा की सेल दिखा रहा है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने जैसे ये ईयर सेलेक्ट किया है तो कनाडा का कितना आ रहा है रिजल्ट यहाँ पे 4811। क्लियर है। हम फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं कैलकुलेशंस के ऊपर, ये समझ में आया। जैसे आई वांटेड टू कैलकुलेट टोटल ऑर्डर क्वांटिटी फॉर कनाडा ओनली। नाउ लेट्स से मुझे और एक फिल्टर ऐड करना है उसमें, सो कॉमा देके मैं और फिल्टर ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो फिल्टर 2 आ रहा है। जैसे मुझे ईयर 2016 के लिए देखना है, सो आई कैन सिंपली ईयर, ईयर कहाँ से, कैलेंडर का मेरा जो टेबल है कैलेंडर का ईयर इज इक्वल टू 2016। सी 4811 मेरे पास कोई फिल्ट्रेशन अप्लाई नहीं है, फिर भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट में जो हमारा ओवरऑल टोटल ऑर्डर क्वांटिटी दिखाता है, यहाँ पे कनाडा का सेल है 22614। ये 22614 फॉर ऑल द ईयर्स दिखा रहा है, बट दिस पर्टिकुलर विजुअल मुझे शो कर रहा है फॉर 2016 के लिए ही ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है कनाडा के लिए। जी 4811 मैं 16 कनाडा का फिल्टर लगाया हूँ तो 4811 मैच हो रहा है मेरा। ठीक है, क्लियर है। ये कैलकुलेशंस में फिल्टर्स अप्लाई कैसे करते हैं यूजिंग कैलकुलेट फंक्शंस। तो हमने अभी कौन से फंक्शन देखा, एक इटरेटर फंक्शन देखा समिक्स, देन हमने देखा कैलकुलेट फंक्शन। जैसे हमने इटरेटर समिक्स देखा वैसे इटरेटर्स बहुत है। जैसे काउंट फंक्शन है तो उसका इटरेटर रहेगा काउंट एक्स, एवरेज फंक्शन है उसका इटरेटर रहेगा एवरेज एक्स, मैक्स फंक्शन है तो उसका रहेगा मैक्स एक्स, मिन रहेगा तो उसका रहेगा मिन एक्स। जितने भी इटरेटर फंक्शन है उसमें आपको पैरामीटर कितने पास करने हैं, टेबल एंड एक्सप्रेशन। एंड जितने एग्रीगेशन फंक्शन है उसमें आपको क्या पास करना है, कॉलम। क्लियर है। ठीक है, जैसे लेट से मेरे पास ये कस्टमर का टेबल है, राइट। कस्टमर के टेबल में मेरे पास कस्टमर का की है। लेट से आई ओपन दिस कस्टमर एंड ये मेरे पास कस्टमर का की है। मुझे पता है कस्टमर का की एक यूनिक है, तो मुझे अगर देखना है कि टोटल मेरे पास कितने कस्टमर है, कस्टमर का काउंट निकालना है मुझे, कितने कस्टमर मेरे पास टोटल है। हाउ वी कैन डू दिस, कौन सा फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, एग्रीगेशन फंक्शन, काउंट, करेक्ट। काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेट्स से कैलकुलेशंस में मैं एग्रीगेशंस को यूज कर रहा हूँ। लेट्स से न्यू मेजर, मेजर्स को नाम देते हैं टोटल नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है, एग्रीगेशन फंक्शन में क्या होगा, काउंट। देखो काउंट में काउंट ए भी है, काउंट ए एक्स भी है, काउंट एक्स भी है। दिस काउंट, सिंपल जो काउंट होता है वो जो ट्रू फॉल्स या 0 1 जो होता है इनको काउंट नहीं करता। जैसे मेरे पास एक कॉलम है जिसकी वैल्यूज ट्रू फॉल्स में, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ऐसी वैल्यू है, या 0 1 0 1 0 1 ऐसी वैल्यूज है। तो उस केस में काउंट फंक्शन मुझे काउंट नहीं देगा, लेकिन काउंट ए जो है ये देगा, क्योंकि काउंट ए जो है जीरो को कंसिडर या ब्लैंक को कंसिडर नहीं करता, या जिन कॉलम का डेटा टाइप बुलियन है, बुलियन डेटा टाइप मतलब ट्रू फॉल्स, तो जिन कॉलम्स का डेटा टाइप बुलियन है उन कॉलम्स के ऊपर आप काउंट फंक्शन यूज नहीं कर सकते, आपको काउंट ए यूज करना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें कब आएगी, अब प्रैक्टिस से आएगी आपको। ठीक है, ये ऐसे एकदम से डैक्स में परफेक्ट हो गया ऐसा नहीं होगा, इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे या उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको डैक्स जो है ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाउ डैक्स एक्चुअली वर्क। ठीक है, सो काउंट में मैं यहाँ पे कॉलम नेम पास कर रहा हूँ। कॉलम कौन सा चाहिए मुझे, कस्टमर टेबल का कस्टमर की।
कस्टमर टेबल का कस्टमर की, else simply enter, let's see the result. इस पर्टिकुलर मेजर को, where is it, कस्टमर बना नहीं क्या, टोटल नंबर ऑफ, आई थिंक बना नहीं, लेट मी क्रिएट वंस अगेन. Total number of customers is equal to count customer key. Okay, and if I drag this in canvas and convert in a card visual, ये visuals हम देखने वाले हैं. ओके, इतना ये मत बोलना कि पता नहीं चल रहा है कि ये कार्ड विजुअल क्या होता है, एक्चुअली कैसे यूज करते हैं. ठीक है, हम देखेंगे इसको. सो बेसिकली ये मुझे आउटपुट क्या दे रहा है कि जितने मेरे पास कस्टमर है इनकी काउंट दे रहा है. कितने, 18148. लेट्स से मैं कस्टमर के टेबल में गया यहाँ पे एंड आई सेलेक्ट कस्टमर का कॉलम. ये दिख रहा है यहाँ पे टोटल रोज 18148 है एंड डिस्टिंक्ट कितना है 18148. तो मैच हो रहा है रिजल्ट हमारा. ओके, एग्रीगेशन फंक्शन समझ में आए. लेट्स से मुझे अगर मिन निकालना है या मैक्स निकालना है किसी कॉलम के अंदर का, देन आई एट दैट मोमेंट आल्सो आई कैन यूज मैक्स और मिन फंक्शंस. जैसे कि कोई सेल्स का कॉलम है या ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम है या एज का कॉलम है और उसमें से मुझे मैक्स एज निकालना है, सो आई कैन यूज मैक्स फंक्शंस और उस एज के कॉलम का रेफरेंस देके मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ कि मैक्स एज कितना है उस कॉलम में, या मैक्स वैल्यू कितनी है, मिन वैल्यू कितनी है, या किसी कॉलम का मुझे एवरेज निकालना हो. जैसे अपना एज का कॉलम है और एज के कॉलम का मुझे एक एवरेज निकालना है कि टोटल एज उस कॉलम का एवरेज क्या है, सो आई कैन यूज एवरेज फंक्शन एट द मोमेंट. अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है सबको? हेलो. ओके, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डैक्स मोर, आप अभी से क्या करो, डैक्स गाइड नाम का एक वेबसाइट है. ठीक है, डैक्स गाइड. यहाँ पे सारे डैक्स यहाँ पे मेंशन है, जितने भी डैक्स फंक्शंस है सारे के सारे यहाँ पे. तो आपको क्या करना है, डेली 5 डैक्स यहाँ से ले लो और उस डैक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. ज़्यादा नहीं, बस 5, डेली 5. महीना भर भी करोगे तो 150 डैक्स आपके कम से कम रेडी हो जाएंगे या अंडरस्टैंड के लिए हो जाएंगे. ठीक है, डैक्स फंक्शंस कब यूज होते हैं, जब आप एक्चुअली लॉजिक लगाते हो किसी कैलकुलेशंस के ऊपर. तो पहली बात तो आपको फंक्शंस पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शंस का क्या यूज है या क्या आउटपुट मिलता है. जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपको पता नहीं होगा, तब तक आप लॉजिक नहीं लगा सकते. करेक्ट, इसीलिए एटलीस्ट इस टाइम पे अगर डैक्स को सिर्फ आपने देखा है, उसको 2-3 बार पढ़ा है, तभी भी आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पे उस डैक्स का एक इम्पैक्ट रहता है. और फ्यूचर में जब आप कैलकुलेशंस लॉजिक खुद लगाओगे, उस टाइम पे कहीं पे आपको क्लिक होगा कि इस रिलेटेड मैंने कोई डैक्स पढ़ा हुआ है. उस टाइम पे आप गूगल कर सकते हो, लेकिन गूगल करने के लिए भी क्या गूगल करना है ये भी पता होना चाहिए ना. बराबर, लॉजिक लिखने के लिए तो आप बस गूगल के सामने बैठ गए तो क्या गूगल बोलेगा लिखो, तो कुछ तो लिखो. करेक्ट, राइट. तो इसके लिए हमें डैक्स फंक्शंस पता होने चाहिए, ताकि आप उस टाइम पे उस डैक्स फंक्शन को सर्च करोगे, उसका डेफिनेशन देखोगे अगेन एंड देन आपको लॉजिक लगाना इजी हो जाएगा. करेक्ट, इसलिए आज से ही डेली 5 डैक्स आपको पढ़ने हैं. करेक्ट, अभी जो हमने देखे कैलकुलेट वगैरह ये हैं यहाँ पे सारे. देखो कैलकुलेट दिख रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट फंक्शन. जैसे मैंने कैलकुलेट ओपन किया तो यहाँ पे क्या बोलता है, फर्स्ट इज द एक्सप्रेशन देन फिल्टर्स. यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन देगा आपको कि एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है, फिल्टर्स मतलब क्या,
उसका एक एग्जाम्पल भी देगा, कैलकुलेट एक्सप्रेशन देन टेबल कॉलम इज इक्वल टू 10, ऐसे एक एग्जाम्पल देगा। पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। आप यहाँ पे कोड लिख के ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, अभी ये सारी फंदों में मत पढ़ो, बस एटलीस्ट डैक्स फंक्शंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं इनको पढ़ो। ठीक है, कुछ डैक्स समझ में नहीं आते, गूगल करो उसके रिगार्डिंग, आपको हजारों उसकी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे भी। कुछ डैक्स समझ में नहीं आते, एंड ऑफ द डे मैं तो हूँ ही यहाँ पे, मुझको भी पूछ सकते हो, बट एटलीस्ट खुद से ट्राई दो एक दो बार। जब तक थोड़ा हेलो सर्च नहीं करोगे, थोड़ा पढ़ोगे नहीं उसके बारे में, तब तक समझ में नहीं आएगा। यस, बोलो। सर, ऐसे टॉप फिर डेस्क में से कौन सा करना चाहिए, टॉप 10 या टॉप 5 जो मेन इम्पोर्टेंस होते हैं? ये वैसे इम्पोर्टेंट डैक्स हम कवर करने वाले हैं, एक लगभग 15-20 डैक्स रहेंगे जो एक कॉमनली आप यूज़ करते हो, जैसे दिस सम एंड सम एक्स। आप जितनी भी रिपोर्ट्स बनाओगे इससे आगे इन पावर बीआई में, आप वो यूज़ करने ही वाले हो, सम एक्स हमेशा यूज़ होता है। तो जैसे वाई टी डी सेल्स, टोटल वाई टी डी, क्यू टी डी, एम टी डी सेल्स, देन उसके ऊपर फिल्ट्रेशन अप्लाई करना, इफ स्टेटमेंट्स वाले कुछ मेजर्स जो कॉमनली यूज होते हैं, वी विल कवर दैट। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे होते हैं जो रेयरली आपको यूज करने पड़ते हैं, इसके लिए आपको वो फंक्शंस पता होने चाहिए। इसीलिए आपको वो डेली पढ़ना जरूरी है, जितने पॉसिबल है, जितने इंपॉर्टेंट है वो तो मैं कवर करूंगा ही यहाँ पे, उसमें कुछ इश्यू नहीं है। बट सारे के सारे डेस्क तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, राइट, इसमें तो 6 महीने निकल जाएंगे हमारे। इसलिए आपको भी डेस्क के ऊपर फोकस करना जरूरी है। पावर बीआई इजी है, बस डेस्क ना हो तो। लेकिन डेक्स इसमें एक मेजर रोल है उसका, क्योंकि कैलकुलेशंस जो आप बनाते हो वो डेक्स के ऊपर ही बनाते हो। सिंपल कैलकुलेशन या ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता रिपोर्ट। ओके, इतना ही सिंपल होता तो क्लाइंट खुद खुद नहीं बनाता, वो आपके पास क्यों होता, डेवलपर के पास। ओके, ठीक है, नाइस। सो नेक्स्ट पार्ट मुझे आपको बताना है, हमने पावर क्यूरी में एक कंडीशनल कॉलम बनाया था इफ स्टेटमेंट का। अंडरस्टैंड हो रहा है? एक हमारा जो एनुअल इनकम का एक कॉलम था जिसमें 60,000 70,000 ऐसे कुछ रो थे, और हमने वहाँ पे कंडीशन लगाई थी अगर 1,50,000 से मेरा सेल या वट एवर जो एनुअल इनकम वो ज़्यादा रहेगा तो आउटपुट में मुझे वेरी हाई चाहिए। अंडर से याद आ रहा है वो? यहीं पे रहेगा कहीं पे वो कॉलम, लेट्स से Yes. उसको देखते हैं। सो लेट्स से आपको वो चीज़ जो है वो डैक्स के थ्रू करनी है, पावर क्यूरी में ना करते हुए वो चीज़ आपको डैक्स के थ्रू करनी है। देन आप कैसे करेंगे? ठीक है, सो लेट्स से हम वो कॉलम देखते हैं, वेयर इट वाज, आई थिंक इट इज इन कस्टमर और व्हाट, किस कॉलम में था? कस्टमर आई थिंक, राइट। इनकम लेवल, ये वाला इनकम लेवल का कॉलम बनाया था अपन ने, बराबर, एवरेज वगैरह, और इसके लिए बेस लिया था अपन ने ये एनुअल इनकम का कॉलम। तो इसी एनुअल इनकम का कॉलम लेके हम एक नया कॉलम बनाएंगे, इनकम लेवल 1, और कंपेयर करेंगे कि डैक्स के थ्रू हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो बराबर आ रहा है क्या पावर क्यूरी के साथ। ठीक है, और कैसे वो डैक्स के थ्रू हम बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें यूज करना है इफ स्टेटमेंट। हमने कंडीशनल कॉलम बनाते समय भी इफ स्टेटमेंट ही यूज किया हुआ है। वहाँ पे हमने इफ कंडीशन दिया हुआ है, एनुअल इनकम अगर इतना हो तो मुझे ये रिजल्ट दो। देन अगेन इल्स में आपने अगर एनुअल इनकम मेरा इतना हो देन मुझे सेकंड रिजल्ट दो। सेम कंडीशन हम यहाँ पे पावर बीआई में करने वाले हैं। कैसे? लेट्स से मैं कैलकुलेशंस में एक नया मेजर बना रहा हूँ, और मेजर नहीं, हम एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाएंगे। मेजर तो एक स्टैटिक रिजल्ट देगा ना, मुझे तो कॉलम वाइज हर एक रो वाइज रिजल्ट चाहिए। सो आई नीड टू क्रिएट वन कैलकुलेटेड कॉलम ओवर हियर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कॉलम कब क्रिएट करना है एंड मेजर कब क्रिएट करना है, ये भी हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए। जैसे इस केस में मुझे पता है कि इनकम लेवल का जो मुझे आउटपुट चाहिए वो एक कॉलम फॉर्मेट में चाहिए, राइट। मुझे हर एक रो का एक वैल्यू चाहिए, मुझे एक स्केलर वैल्यू नहीं चाहिए, एक सिंगल वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे हर एक रो का एक वैल्यू चाहिए। सो दैट्स वाई मुझे एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। या
लेट्स से मान के चलो कि इस इनकम लेवल का आपके पास कॉलम है ही नहीं यहाँ पे, एंड नाउ रिक्वायरमेंट इज दैट कि आपको यहाँ पे एक कॉलम बनाना है जो आपको वैसे रिजल्ट दे, देन सिंपल श्योर है ना कि आपको कॉलम ही सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि मेजर। देन आई कैन सेलेक्ट न्यू कॉलम, राइट। मुझे एक कॉलम चाहिए यहाँ पे यूजिंग डैक्स। सो लेट्स से कॉलम कॉलम का नाम देते हैं अपन इनकम लेवल। ठीक है। सो सबसे पहले आएगा इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो इफ फंक्शन आ रहा है। इफ फंक्शन में आपको पहले लॉजिक टेस्ट पास करनी होती है 3 पैरामीटर से। फर्स्ट इज योर लॉजिक, आप कौन सा एक्सप्रेशन या कौन सा लॉजिक चेक करना चाहते हो। इफ लॉजिक इज ट्रू, आपका एक्सप्रेशन जो आप कंपेयर करना चाहते हो, इवेल्युएट करना चाहते हो, वो अगर ट्रू है तो आपको कौन सा रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट इफ ट्रू, रिजल्ट इफ फ्लॉज। जो एक्सप्रेशन जो लॉजिक आप पास कर रहे हो वो अगर ट्रू है तो कौन सा रिजल्ट आपको चाहिए, अगर फॉल्स है तो कौन सा रिजल्ट चाहिए। ये सारे के सारे पैरामीटर्स आपको देने होते हैं। सो लेट्स कंसिडर फर्स्ट कि इफ एनुअल इनकम, दिस इज माय एनुअल इनकम, राइट, कस्टमर्स का एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लॉजिकल ऑपरेटर्स पता है सबको, किसको लॉजिकल ऑपरेटर्स पता नहीं है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये ऑपरेटर सबको पता है या ऐसा कोई है जिसको ये पता नहीं है। इफ नॉट देन वी नीड टू टेक दिस ऑपरेटर फर्स्ट एंड देन वी गो फॉर दिस। लॉजिकल ऑपरेटर सबको पता है, ऑनलाइन स्टूडेंट, Yes, sir. यस नो, सबको पता है। Yes, sir. ओके चलो मैं फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। मुझे डाउट हो रहा है कि क्योंकि आपका आवाज बहुत लो लगा ना, इसलिए मुझे ऐसा डाउट सा फील हो रहा है। हाँ तो मुझे बताओ कि मुझे अगर लिखना है यहाँ पे, जैसे 5 है एंड यहाँ पे है 8, मुझे मेंशन करना है लॉजिक ऑपरेटर के साथ कि 5 ग्रेटर देन है 8, तो कैसे लिखूंगा बताओ। मैं लिख रहा हूँ, मुझे बताओ दिस इज राइट और रॉन्ग। दिस इज राइट, ये एक्सप्रेशन 8 और 5 में No. मुझे करना है। दिस इज No, रॉन्ग, sir. राइट। It is less than. सो दिस इज करेक्ट वन। अभी मुझे लिखना है, लेट्स से यहाँ पे 5 है अगेन और यहाँ पे 8 है, और मुझे यहाँ पे लिखना है कि 5 इज नॉट इक्वल टू 8, 5 इज नॉट इक्वल टू 8। कैसे लिखूं मैं, ऐसे इक्वल टू साइन, तो ये तो इक्वल टू है ना, 5 इज इक्वल टू 8, ऐसे। X mark and easy. ओके ऐसे, करेक्ट आता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Left and right. हाँ. 5 इज नॉट इक्वल टू 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेस देन इक्वल टू ये सबको पता होता है, लेकिन ये मोस्टली हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि नॉट इक्वल टू हम कैसे मेंशन करें लॉजिकल ऑपरेटर्स में। तो हम ऐसे मेंशन करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू दोनों साइड कंबाइन कर लो, विच इज आल्सो यूज व्हेन यू वांट टू यूज नॉट इक्वल टू। क्लियर है सबको, ग्रेट। नाउ मुझे अभी यहाँ पे मेंशन करना है कि कस्टमर का एनुअल इनकम अगर 1,50,000 या उससे ज्यादा है, सो आई कैन यूज ग्रेटर देन इक्वल टू, करेक्ट। ये बराबर है कि एनुअल इनकम अगर 1,50,000 और उससे ज्यादा है, देन माय रिजल्ट विल बी वेरी हाई, बराबर ना, करेक्ट। लेकिन ये कंडीशन अगर फॉल्स है, एनुअल इनकम 1,50,000 से कम है,
देन आई नीड टू, ये तो फॉल्स हो जाएगी ना, तो फॉल्स रिजल्ट के लिए भी मुझे अगेन इफ स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। एल्स एल्स व्हेन कि लेट्स से मैंने यहाँ पे 1,50,000, दिस 1,50,000 अगर ग्रेटर देन और इससे इक्वल टू, तो मैंने कंडीशन अगर ट्रू रहा तो उसका रिजल्ट तो मैंने पास कर दिया। लेकिन कंडीशन अगर फॉल्स है, रिजल्ट या एनुअल इनकम 1,50,000 से कम ही है, तो जो आउटपुट मैं यहाँ पे दूंगा तो वो डायरेक्टली ले लेगा। बस जितनी इनकम मेरी 1,50,000 से ज़्यादा है, लेट्स से मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ लो, ठीक है, ऐसे पास कर रहा हूँ मैं लो। हमने क्या पास किया, एनुअल इनकम अगर ग्रेटर देन 1, दिस इज माय फर्स्ट लॉजिक, ये मेरा लॉजिक है जो मुझे टेस्ट करना है। अगर ये लॉजिक सही है तो मुझे वेरी हाई दो, अदरवाइज मुझे लो दो। ऐसे मैंने सिंपली यहाँ पे डाला, आई जस्ट हिट एंटर, लेट्स सी व्हाट रिजल्ट इज गिव अस। लेवल 1, ठीक है, आउटपुट में मुझे क्या मिला, लो एंड वेरी हाई। लेट्स से मैंने वेरी हाई वाला सेलेक्ट किया, तो ये बराबर मैच कर रहा है मेरे इनकम लेवल के कॉलम के साथ, और जो मेरा एनुअल इनकम है दिस इज आल्सो 1,50,000 एंड उससे ग्रेटर है। लेकिन लो के केस में क्या हो रहा है कि सारी वैल्यू जो ये क्राइटेरिया मैच नहीं कर पा रही है वो सभी को लो आएगा वो। बट हमारा एक्चुअल मोटो क्या था, ये पर्टिकुलर आना चाहिए ना, एवरेज, हाई एंड लो, ये तीन है ना अपने पास। तो इन तीनों को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी ओपन दिस मेजर अगेन, इंस्टेड ऑफ दिस फॉल्स कंडीशन what I can use over here, another if, comma, next line let's say मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उसको थोड़ा, this is our parent if, main if जो हमारा है स्टेटमेंट, उसके अंदर if के अंदर if, this is called nested if, ठीक है। मैं if के अंदर if, अगेन मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ कि अगेन मेरा अगर कस्टमर एनुअल इनकम अगर मेरा ग्रेटर देन है इक्वल टू, नेक्स्ट क्या था, 1 लाख था, करेक्ट। देन क्या चाहिए मुझे, अगर वो 1 लाख से ग्रेटर है, हाई, करेक्ट, हाई। अगेन तीसरी कंडीशन मुझे देने के लिए अगेन मुझे नेस्टेड इफ यूज करना है, क्योंकि मेरे को एवरेज भी तो निकालना है, जो वैल्यू था कि 1 लाख से जो कम वाले हैं वो तो भी मुझे मेंशन करने हैं। वो मैंने कैसे मेंशन किए थे कि ग्रेटर देन 50,000, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। सो अगेन कस्टमर एनुअल इनकम is greater than equal to 50,000। इफ ये कंडीशन ट्रू है देन मुझे चाहिए क्या, एवरेज, एवरेज। नाउ इल्स की बात आती है ना, ये तीनों कंडीशंस अगर मेरी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो अल्टीमेटली जो एनुअल इनकम है वो 50,000 से कम है, तो उसको मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इस कॉमा के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट डाल सकता हूँ कि डायरेक्टली लो। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है देन लो। इसका मीनिंग क्या है, देखो फर्स्ट इफ जो है मेरा, फर्स्ट इफ अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये कंडीशन चेक करेगा वो एंड आउटपुट निकालेगा हाई। अगर ये सेकंड कंडीशन फॉल्स है देन वो चेक करेगा दिस थर्ड कंडीशन। अगर ये भी फॉल्स है देन अल्टीमेटली गिव मी लो। क्लियर है, ये मेरा लास्ट वाला इफ क्लोज हुआ, ये फर्स्ट सेकंड वाला एंड ये फर्स्ट वाला। लेट मी रन दिस एंड चेक, वी चेक आउटपुट। ओके, सो लेट्स से मैं यहाँ पे क्लियर ऑल फिल्टर्स करता हूँ, लेट्स कंपेयर दिस इनकम लेवल विद दिस इनकम लेवल। लेट्स से मैं यहाँ पे हाई सेलेक्ट करता हूँ, ओरिजिनल जो हमारा इनकम लेवल है जो हमने पावर क्यूरी में बनाया था। तो देखो यहाँ पे भी इनकम लेवल में हाई आया है, राइट। इस वाले में मैंने देखा तो यहाँ पे देखो बस हाई ही रहेगा। इस वाले में लेट्स से मैंने फिल्ट्रेशन किया अगेन एवरेज, हाई को निकाल दे रहा हूँ।
तो इस इनकम लेवल 1 में also I got average 1. See, understand यही है if statement सबको? Yes, sir. This one? Indentation. आहे इथे पण आता let's say this DAX you created. Now आपको DAX is राहुल सर, कैन यू प्लीज yes जस्ट, आपका स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या सर? बड़ा मतलब DAX जो है वो हाँ सर, थोड़ा जूम आउट हो सकता है क्या आपका? just a minute I'll just try. Basically वो होता है माउस से but I'm not able to do from this note. पैड से नहीं हो रहा है. स्क्रीन रेजोल्यूशन बट स्क्रीन रेजोल्यूशन तो भी ठीक है क्या? ओके फाइन. सो अभी यहाँ पे लेट्स से आपने ये कैलकुलेशन ऐप बनाया बट टू अंडरस्टैंड करने के लिए इसको फॉर्मेट करना भी ज़रूरी होता है. आप सिंपल एक लाइन में डैक्स को नहीं लिख सकते क्योंकि अंडरस्टैंड भी तो डैक्स होना चाहिए. या आप देख रहे हो तो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, कोई और बंदा देखेगा इस डैक्स को तो उसको भी ये समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लॉजिक लगाया. तो इसलिए हमारे पास एक डैक्स फॉर्मेटर है. जैसे मैं ब्राउज़र पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा डैक्स फॉर्मेटर. एसक्यूएल भी का ये डैक्स फॉर्मेटर है. मैं इसको ओपन करूँगा. मेरा जो डैक्स है लेट्स से दिस डैक्स, मैं इसको कॉपी करूँगा and I'll paste over here in DAX format. ठीक है, and I'll just format it. See, इसने जो इंडेंटेशन है वो एक प्रॉपर करके दिया है मैंने. Just copy this, or I can copy from over here, copied, and I again paste in my actual DAX. Replace it with this. You see, इंडेंटेशन एक प्रॉपर हुआ है कि this particular and अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैं बोल रहा हूँ डैक्स को, तो ये आपको एक प्रॉपर रिजल्ट देगा. तो जो भी आप कॉम्प्लिकेटेड डैक्स लिखते हो उसको फॉर्मेट करो डैक्स फॉर्मेटर से. बाद में वो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए भी इजी रहेगा डैक्स. ठीक है. तो मैंने दो वेबसाइट बताई आपको, एक डैक्स फॉर्मेटर एंड एक डैक्स गाइड. डैक्स गाइड से आपको डेली 5 डैक्स करना है. डैक्स फॉर्मेटर से जो भी डैक्स की प्रैक्टिस करोगे उसको फॉर्मेट करके चेक करो. ठीक है. ओके, सो लेट मी कवर वन मोर डैक्स. लेके और एक डैक्स या कर ले? बस हो गया. चलो एक डैक्स ले लेते हैं. बस इसी को मैं यूज करके बताऊंगा आपको कि नेस्टेड इफ यहाँ पे है राइट. मैं और एक वे बताता हूँ इसको कि अगर आपको नेस्टेड इफ्स यूज नहीं करने हैं तो वन अनदर वे इज यूजिंग स्विच स्टेटमेंट. ठीक है. स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं? लेट्स से मैं अगेन आई विल गो टू माय कस्टमर टेबल एंड ओवर हियर जस्ट लेट्स से मैं एक नया कॉलम बनाना चाहता हूँ. से इनकम लेवल 2 is equal to स्विच फंक्शन एक है
एक्सप्रेशन मेरा रहेगा ट्रू। फर्स्ट वैल्यू में लेट्स से एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1,50,000, then result will be very high। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, कस्टमर एनुअल इनकम is greater than equal to 1 lakh, then high। Third condition, customer annual income is greater than equal to 50,000, then average। मैं ये अगर सारी कंडीशन फेल्स हो, सॉरी, ये सारी कंडीशन अगर मेरी फेल हो, then I need to then give me low। Just close this and hit enter। ठीक, ये भी डैक्स मुझे सेम आउटपुट देगा। कौन सा इजी लग रहा है? इफ वाला इजी लग रहा है, ये इजी लग रहा है? स्विच। स्विच इजी लग रहा है, राइट? सो आप डिसाइड कर सकते हो। Yeah. स्विच बेसिकली जो फंक्शन है, जैसे मैं यहाँ पे लेट्स से अगेन आई विल टाइप स्विच, जो अगर कमेंट करना है कोड तो आई कैन यूज दिस। से आई थिंक दिस वी कैन यूज इन एसक्यूएल आल्सो, कि मैं कोलन एक स्लैश स्टार दे सकता हूँ, यहाँ से लेके नीचे का सब मुझे कमेंट चाहिए। तो ग्रीन में हो गया तो इसका मतलब वो कमेंटेड है। यहाँ पे मैंने स्विच फंक्शन डाला, तो स्विच फंक्शन क्या करता है, एक एक्सप्रेशन मांग रहा है आपसे। अगर दिस एक्सप्रेशन अगर आपका ट्रू रहेगा, यहाँ पे कोई लॉजिक भी पास कर सकते हो आप। मैं इस एक्सप्रेशन की जगह पे ट्रू पास कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन है ट्रू। ये बेसिकली क्या चेक कर रहा है कि जो आप वैल्यूज यहाँ पे दे रहे हो ना, ये वैल्यूज, ये अगर ट्रू है तो मुझे ये आउटपुट वेरी हाई दो। अगेन सेकंड कंडीशन के लिए, सेकंड वैल्यू अगर ट्रू है तो ये दे, थर्ड वैल्यू अगर ट्रू है तो एवरेज दो, एल्स लो दो। स्विच एंड इफ बोथ सेम ही वर्क करते हैं, बट स्विच के बहुत सारे अदर यूज भी है। जैसे कि मैं मेजर्स को भी यहाँ पे डाल के चेक कर सकता हूँ कि अगर मेरा पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो रही है देन मुझे इस मेजर का आउटपुट दो। अगर सेकंड वैल्यू मेरी ट्रू हो रही तो अगेन मुझे सेकंड मेजर का आउटपुट दो। तो मल्टीपल मेजर्स भी आप स्विच के अंदर यूज कर सकते हो। सर फॉल्स आणि स्विच मध्ये ट्रू जे अशी कंडिशन्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ इफ वर्क होता है वहाँ पे स्विच आप यूज नहीं कर सकते, बोथ आप यूज कर सकते हो। बट अगेन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि यूज केस कैसा है आपका। इफ स्टेटमेंट क्या है कि सिंपल आप एक लॉजिक चेक करते हो एंड उस लॉजिक के अंदर अगर वो लॉजिक ट्रू है देन आपको एक वैल्यू मिल रहा है, अगर एक फॉल्स है लॉजिक तो एक वैल्यू मिल रहा है। बट स्विच में क्या, अगर मैं स्विच का डेफिनेशन आपको दिखाऊं तो एक एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं आप। एक्सप्रेशन कैन बी अ मेजर आल्सो, एक्सप्रेशन कैन बी यूर लॉजिक आल्सो। आप यहाँ पे एक्सप्रेशन में ऐसे दे सकते हो कि लेट्स से इफ स्विच में एक्सप्रेशन की टोटल एनुअल इनकम इज इक्वल टू 60,000 और कंट्री नेम इज इक्वल टू कनाडा, तो वो ऑलवेज उसी के लिए चेक करेगा कि इफ कंट्री का नाम कनाडा है तो उसी के लिए वो लेट्स से मैं ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर, देन टोटल रेवेन्यू, ऐसे मल्टीपल मेजर्स डाल के एक स्विच से एक कॉलम बना सकता हूँ। बेसिकली स्विच एक क्या करता है, एक टेबल परफॉर्म करता है। एक टेबल, दिस इज द टेबल फंक्शन, वी कैन से दैट स्विच। वैसे इफ जो है ये एक लॉजिकल फंक्शन है, आप एक लॉजिक पास करते हो एंड यू चेकिंग द लॉजिक। बट स्विच वैसा नहीं है, स्विच एक टेबल फॉर्मेट में आपको आउटपुट देता है ऑलवेज। ठीक है। आप इफ का यूज करके एक स्केलर वैल्यू भी ला सकते हो कि लेट्स से कि अगर मेरा एक लॉजिक है, इफ कंट्री इज इक्वल टू कनाडा देन एंड देन ओनली गिव मी ऑर्डर क्वांटिटी, अदरवाइज गिव मी 0। तो वो क्या करेगा, बाकी सारी कंट्रीज के लिए 0 आउटपुट देगा, बस
कनाडा के लिए आपको कंट्री का आउटपुट देगा, ऐसे। ठीक है, तो ये इफ स्टेटमेंट की और स्विच की प्रैक्टिस करो आज, इसको यूज करके देखो कैसे है। अल्सो ये फंक्शंस को, दोनों फंक्शन को चेक करो टेक्स्ट गाइड के अंदर, वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है स्विच के लिए रिगार्डिंग, इफ के लिए रिगार्डिंग। जितने फंक्शन हमने आज देखे, कैलकुलेट देखा, इटरेटर फंक्शन सम एक्स देखा, इफ स्टेटमेंट देखा, स्विच देखा, ये सारे फंक्शंस एक बार टेक्स्ट गाइड में चेक करो, वहाँ की इंफॉर्मेशन पढ़ो, देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट इट। ठीक है, चलो ठीक है, देन बाकी का देखते कल। ओके, कल और टैक्स फंक्शन देखेंगे, और कल साथ ही हम पावर बीआई के अंदर जो ये विजुअल्स होते हैं, इन विजुअल्स के रिगार्डिंग भी पीपीटी है हमारे पास एक, उसको देखेंगे पीपीटी के। देन विल स्टार्ट एक्चुअल रिपोर्टिंग, हम एक रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। वंस दिस रिपोर्ट कंप्लीटेड अलॉन्ग विथ डैक्स भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, देन वी विल स्टार्ट पावर बीआई सर्विसेज पार्ट, जो एक कंपोनेंट है आपका कि पावर बीआई सर्विसेज में जब ये रिपोर्ट आप बनाते हो, इन रिपोर्ट्स को आपको कहीं पे स्टोर करना होता है क्लाउड्स के ऊपर, टू कोलैबोरेट और टू शेयर दोज रिपोर्ट्स विद अदर यूजर्स। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट जरा वेट करना, जस्ट कैप्चरिंग द अटेंडेंस। सर एक पूछना था मुझे। बोलिए। सर जैसे आपने एक डेक्स का बताया ना, डेक्स लैंग्वेज, आपने एक दूसरा बताया ना सर, वो कौन सा तत्व है? फॉर्मेटर। डेक्स फॉर्मेट। Yes.